ओम शांति। Relax your body. रिलैक्स करें अपने टोज, एल्बोज, हैंड्स, फिंगर्स, relax every muscle of your body. I relax my body. And now look between the center of your forehead a beautiful star is shining. I look at the star. I am the star. Between the center of the forehead. I am a pure, beautiful star. Experience a tiny point of light shining in the center of the forehead. I, the soul, I am peace. I am weightless. I am light. A tiny star between the center of the forehead. I, the point of light. I am full of virtues. Simplicity is a very good virtue of mine. सिंप्लिसिटी एक बहुत सुंदर गुण है मेरे अंदर.
I, the soul, dive deep into these qualities. Qualities of love, joy, peace, dive into these qualities. Simplicity, a very good virtue of the soul. साधारणता, real, simple, whenever any situation comes into my life, I, the simple soul, I, the soul, deal it in a very simple way. But sometimes I become attached to the problem. And I am not able to find out the right solution. What I have to do is I have to visualize, remember again and again that I am a point of light, that I am a soul, a beautiful point of light, a detached observer. Being a detached observer, I see every problem. I zoom out myself. From every problem. दूर दृष्टि से मैं उस सिचुएशन को देखती हूँ, जैसे किसी और की प्रॉब्लम को देख रही हूँ. Being a detached observer. And now I focus my attention
on the solution, not the problem. I focus my mind on the solution. प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी. It's my perspective, how I look at the solution, how I look at the problem. वो मेरा नज़रिया है, कैसे मैं उस सिचुएशन को देखती हूँ. Being a detached observer, I watch every situation. I, the soul, a beautiful point of light, a pure soul, a tiny point of light. I, the soul. With simplicity, simple thoughts, clean and pure thoughts. Simplicity comes purity, innocence, and clarity. As I, the soul, becomes simple, purity flows in, clarity of the mind in every situation. And innocence. Being innocent like a child. I am a pure being of light, detached from this body. I free my mind from unnecessary clutter. जो भी कचरा है मेरे माइंड में, मैं आत्मा उस कचरे को साफ करती हूँ. Now I, the soul, check out कि ऐसा क्या है जो मुझे किसी भी मोमेंट को प्रेजेंट में जीने नहीं देता.
What is it that I can't enjoy the present moment? What is it that I can't see the beauty of the moment? I can't see how colorful the life is. What is all that is cluttering into my mind? उस मोमेंट की, उस सिचुएशन की विस्डम को मैं नहीं देख पाती हूँ. The gift that moment brings. What is it? That I can't feel the moment. क्यों नहीं मैं प्रेजेंट में खुशी खुशी जी पाती? And now I look at my mind. My mind is not at the present moment. It goes into the past. Or it creates waste or negative thoughts. Unnecessary clutter को इकट्ठा करके रखता है. Which gives a foul smell. I, the soul, take a deep look inside my mind. I look at my mind. That I have to be in the present moment. I have to finish everything about the past. पास्ट से सीख कर आगे बढ़ना है. Let go. I have to learn to let go of everything that I'm holding up to. I let go. I let go every waste, every negative thought. जो भारी भारी पत्थर और कंकड़ मुझ आत्मा ने अपने मन के अंदर भरे हैं, I let go of them. Just feel the vision. That those heavy stones of past, waste and negative thoughts, thoughts of vices, I just let them go.
मन के हाथों से मैंने छोड़ दिया उन पत्थरों को। All of those things were kept like heavy stones on my mind. Today, I let them go. And I move on. I'm cleaning every nook and corner of my mind. I, the point of light, I, the tiny soul, weightless, just a point of light. My mind is cleaned up. I let go of everything that I was holding up to. I am light, like a feather. जैसे पंख लाइट होता है, पंख हवा में उड़ता है, ऐसे मैं आत्मा लाइट हूँ। I, the point of light, I, the beautiful soul, the clean soul. I'm standing on a rock. I'm standing strong there. On that rock, an ocean of sorrow is there all around me. But I, the soul, I am unshakable, immovable. I'm strong. कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा को हिला नहीं सकती। I'm standing strong like a rock. Peace. I, the soul, light is flowing through me, the soul. I, the peaceful soul. Peace is tranquility. Peace is serenity. I, the soul, I am contented.
satisfied. जो भी है उसमें संतुष्ट हूँ, कंटेंटेड हूँ, satisfied हूँ. Tranquility and serenity. I, the peaceful being of light, I, the soul, with simplicity, through this, I, the soul, gives to everyone. I am the giver. In my presence, healing happens of the other souls. I am the healer, healing through silence. I, the soul, heals everyone through my silence, through my tranquility, serenity. I, the beautiful soul, a tiny point of light, a clean soul with simplicity.
होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। सभी बाबा की पावरफुल याद में बैठे उस परमात्म पालना का, उसकी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। और इसी स्थिति में हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने आज हमें हमारा अनादि आदि स्वरूप की स्मृति दिलाई। हम अनादि में क्या थे और आदि में हम क्या थे। हाँ, फिर बाबा ने स्मृति दिलाई बच्चे, जैसे एक शरीर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज की जाती है, तो बाबा ने कहा ये रूहानी ड्रिल है। जितना हम अपने को आत्मा समझ एक्सरसाइज करेंगे, रूहानी ड्रिल करेंगे, उतना ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि बाबा ने इशारा दिया समय कैसा आ रहा है, तो बाबा ने कहा चारों तरफ हलचल हो, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप अचल रहो। हाँ, तो ये स्थिति हमें पहले से ही अपनी बनानी है। फिर बाबा ने कहा समय आने वाला जो समय होगा कैसा होगा, प्रकृति के भी पेपर होंगे, 5 तत्व। और बाबा ने कहा ये जो विकार हैं ये भी उथल खाएंगे, माया भी उथल खाएगी, फुल फोर्स में आएगी। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा कहा, कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ खींचे ना, न देह के संबंध, न देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, कोई भी हमें अपनी तरफ ना खींचे। और बाबा ने कहा मैं बाबा की बच्ची न्यारी और प्यारी, स्वीट साइलेंस का अनुभव करें। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने बार बार कहा अब ये प्रैक्टिस करो, ये एक्सरसाइज करो। सबके बीच में रहते, सब कुछ देखते, अपने आप को डिटैच क्यों क्या। हाँ, यहाँ तक कि बाबा ने कहा कोई निंदा भी करता है, कोई गलानी करता है, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना। बहुत ही सुंदर बाबा बच्चों की तैयारी करा रहे हैं। तो इसलिए अपनी स्थिति के ऊपर हमारा विशेष ध्यान हो। हाँ, आज जहाँ हम रहते हैं, बातें, परीक्षाएं तो आती ही हैं, पर उन चीज़ों से हम कितने बचे रहते हैं, उन बातों का इफ़ेक्ट मेरे मन पर ना हो। तो बहुत ही सुंदर आज बाबा ने बच्चों को नॉलेज के द्वारा हमारा आने वाला समय या वर्तमान स्थिति कैसी है उसका बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं। ना सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं बाबा। तो सभी हम इसी स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे।
बहुत आनंद भी आ रहा है सुनते समय, पढ़ते समय, लेकिन कैसा वो समय होगा और मेरी स्थिति कैसी होगी ना, उसको हम वर्तमान भी फील करते हैं। और आज बाबा ने बहुत चीज़ों पे हमें अटेंशन खिंचवाया है। तो आज प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली है 6 तारीख की। तो मुरली का सार है रूहानी ड्रिल। तो बाबा ने कहा, बाप दादा सभी बच्चों के स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना। 1 सेकंड में इस स्थिति में स्थित हो जाना, ये है प्रैक्टिस। यह प्रैक्टिस कहाँ तक की है, अपने आप से हम पूछते रहें। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। कौन सी स्थिति? 1 सेकंड में साइलेंस, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। अपना अनादि स्वरूप देखिए, मेरा अनादि स्वरूप क्या है? स्वीट साइलेंस। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, देव स्वरूप। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। जो मेरा अनादि संस्कार है वो है साइलेंस। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। हाँ, तो हमारा अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप और अनादि स्वभाव को जानते हुए भी जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बाबा ने कहा 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। बच्चों को आवाज में आने की मेहनत नहीं लगती है। मेहनत किस में लगती है? हाँ, साइलेंस में जाने की। तो बाबा ने वही स्मृति दिलाई, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल संस्कार है, वो क्या है? साइलेंस। बाबा कहते हैं लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। जैसे एक बीज बोते हैं धरती में, तो एक बीज को मिट्टी का, पानी का, खाद का सहारा मिलता है, तो कितना वो विस्तार कर लेता है अपना। लेकिन बीज की यात्रा बीज तक ही होती है। धीरे धीरे वो बीज फिर एक बीज में ही सिमटता है, तभी उस बीज से एक नए पेड़ की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, हमने बहुत विस्तार कर लिया अपने को, देह समझा, देह के संबंध कितना विस्तार हो गया। तो अब बाबा ने क्या कहा, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ। हाँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम स्थित होंगे, तो आत्मा भरपूर हो जाएगी। और स्मृति दिलाई बाबा ने, अब घर चलने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर, आदि मध्य अंत तीनों काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है।
इसलिए बाबा ने कहा, इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। कौन सा अभ्यास? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और आत्मा का ओरिजिनल गुण क्या है? साइलेंस। इसलिए बाबा ने कहा, अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रियां जीत बने हैं। आवाज में नहीं आना चाहे तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। कभी कभी होता है अंदर से तो हम मौन करके बैठे हैं, लेकिन मुख इच्छा होती है बात करने की। हाँ, तो बाबा ने वही कहा, मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। बार बार रूहानी ड्रिल करो। बार बार साइलेंस में जाने की ड्रिल करो। आवाज में तो आने का बहुत सहज, बहुत सहज ही आ जाते हैं, उसके लिए तो कोई मेहनत नहीं। पर आवाज़ से परे जाने के लिए ही मेहनत है, उसी के लिए रूहानी ड्रिल है। बाबा ने मिसाल दिया, जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। बहुत काल माना बहुत समय का चाहिए। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी हलचल हो, तो बाबा ने कहा, और ये अभ्यास बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ शांति ही है, हाँ, वहाँ हम कहीं हम शांति में रहते हैं, वहाँ वातावरण शांत है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा, अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, अटेंशन से सुनेंगे सभी। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, चाहे संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, ये पूछिए अपने आप से। ऐसे में अपने आप को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। बाबा कहते, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। टाइम लग रहा है तो ये टाइम ज़्यादा लगना कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। ये जो समय अभी मिल रहा है हमको, हाँ, बाबा ने कहा, लेकिन आने वाला जो समय वो कैसा होगा, तो उस समय ज़्यादा समय मिलने का नहीं है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। चारों तरफ हलचल हो। बाबा ने क्या कहा, यहाँ तक कि अपने भी कोई कमी कमजोरी है, कोई व्यर्थ संकल्प है, तो हलचल है। लेकिन बाबा ने क्या कहा उस समय, नंबर किनको मिलेंगे?
हलचल में भी जो अचल हैं। तो बाबा ने कहा, अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास, मन को जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है। हाँ, टीचर तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन से अंत में क्वेश्चन आने हैं। तो क्या कहा, पहले से ही बता देते हैं ये पेपर आना है। सुना सभी ने अटेंशन से। लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो, क्योंकि समय थोड़ा सा मिलेगा। इतने सारे पेपर आएंगे ये, पर समय थोड़ा सा होगा। तो बाबा ने कहा, और स्टेज बहुत पावरफुल हो। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। जो थोड़े टाइम, जो थोड़ा टाइम मिलेगा उसमें पास होना है। तो बाबा ने क्या कहा, कौन कौन खींचेगा हमको। देह के संबंध, देह के संस्कार, वैभव, व्यक्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल। और बाबा ने कहा ये अपनी तरफ आकर्षित ना करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। नष्टो मोहा, गीता में है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, तो यहाँ नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। अंत में किसी में भी हमारा मोह ना हो, और समर्थ स्वरूप, आत्मा का जो रियल रूप है बहुत पावरफुल हो। तो ऐसी प्रैक्टिस है, पूछ रहे हैं बाबा, ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। हाँ, कितना अच्छा बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं कि लोग चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ हलचल है, पर आप अचल रहो। प्रकृति, माया लास्ट दाव लगाने के लिए बाबा ने कहा अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन उस समय हमारा अभ्यास क्या हो, न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। आज कौन कौन से हमारे अभ्यास हो, कौन से हमारे बीच बीच में ये रूहानी ड्रिल हो, बाबा वो भी हमें बता रहे हैं। बाबा कहते इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। हाँ, देखते हुए देख रहे हो, हाँ, देखते हुए भी आपको पता ही ना चले आपने देखा है। हाँ, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। कुछ भी हम सुन रहे हैं, कभी कभी होता है ना, इतना अच्छे से सुन लेते हैं हम, हमारे अंदर से वो निकलता ही नहीं, वो बातें हमको भूलते ही नहीं।
किसी को हमने इतना ज़्यादा देख लिया कि वो कहीं और, मैं कहीं और, लेकिन अभी भी मैं उसी को ही, हाँ, वही बार बार बुद्धि में आ रहा है। तो बाबा ने उसके लिए भी अटेंशन खिंचवाया, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, दे रहे हैं ना अभी भी बाबा समय। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। हाँ, कोई भी कमी है अभी भी उसको भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया। तो अभी थोड़ा चांस है। बाबा ने कहा अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। कितने अभ्यास बताए बाबा ने, इसलिए देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। और कितना कहा बाबा ने, किसी कौन से अभ्यास, बार बार न्यारे प्यारे स्वीट साइलेंस स्थिति का अनुभव करना। मन को जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो उसको लगा सकते हो। कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ खींचे ना। इसलिए बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनना या पास होने का यह आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास हो, समय की घंटी बजे तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। ये जो अभ्यास है, तो इसमें अभ्यास तो सभी ने किया, लेकिन इसमें अष्ट रत्न की माला छोटी बनी। तो ये बाबा ने कहा, कहते हैं बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, क्योंकि इतनी सारी जो बातें बताई बाबा ने। अब हमारा अगर अभ्यास नहीं है, समय बहुत थोड़ा है, तो पास हो नहीं सकेंगे, फिर उस माला में हम आ नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा माला हाँ थोड़े समय की है, समय थोड़ा है और पास विद ऑनर बनना है। इसलिए बाबा ने कहा तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाओ। मैं बिंदी और मेरा बाबा बिंदी, इस स्थिति में टिक जाओ। बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभ्यास ना हो। हाँ, और उस पल हम कहें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का ही होगा। जो बाबा ने इतने सारे भी पेपर बताए, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति भी जितना शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेंगी। उसकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत अवस्था। इसलिए हम ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनते हैं ना, बाबा ने बहुत बार सुनाया, उधर योग और उधर कर्म भोग, चारों तरफ खींचा ताने। आखिर योग बल से उस कर्म भोग पर विजय प्राप्त हुई। तो ऐसे ही बाबा ने भी कहा बच्चे, चारों तरफ हलचल होगी, हर एक
हाँ, हर एक पेपर सामने आएंगे, पर उस समय हमारी स्थिति हाँ कर्मातीत। तो बाबा ने कहा कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होंगी, प्रकृति और माया का फुल फोर्स, वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएंगे। जब किसी की विजय होती है तो चारों तरफ नगाड़े बजाए जाते हैं। सुनते हैं ना, जब राजा युद्ध में जीत के आते थे तो जय जयकार होती थी। तो बाबा भी वही कह रहे हैं बच्चों को कि विजय के नगाड़े बजाएंगे। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 होंगे, विन विजयी होंगे तभी 1 नंबर 1 में आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। बाबा ने कहा बातें तो सब आएंगी ही, हाँ, पर उस समय मैं कितना उन बातों से अपने आप को मुक्त रखती हूँ, कितना मैं उन चीज़ों पर विजयी बनती हूँ, इसके नंबर मिलेंगे। तो ही बाबा ने कहा इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। अच्छा, डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हो ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, हाँ, देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा। क्या चाहिए अब? हाँ, तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। हाँ, समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो, टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने ही चाहिए, क्योंकि समय से पहले सब कुछ जान लिया है। तो क्या होना चाहिए? सभी पास होने चाहिए। तो एक बात याद आती है हमको, कहानी कि एक बार एक राजा के महल में एक व्यक्ति जाता है और राजा उसको कुछ ड्यूटी दे देते हैं। तो बहुत दिल से करता है, खुशी से करता है। तो लास्ट में जब वो ड्यूटी पूरी हो जाती, राजा के पास जाता है। तो राजा उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। तो राजा ने कहा जो आपने ड्यूटी की है ना, तो मैं बहुत आपसे खुश हुआ। तो राजा ने कहा आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया तो आपने 500 रुपये का ही काम है, लेकिन बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस समय तो 500 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी। तो राजा ने कहा मैं मुझे अंदर से इतनी खुशी, आपने इतना मुझे खुश कर दिया। तो कहा मैं आपको, जहाँ मैं सोता हूँ ना, जो मेरी कक्ष है, तो आप वहाँ पर आज रात रेस्ट करो, और वहाँ पर इतना खजाना है, हाँ, जो मन आए आपका, जो मन चाहे आप ले लो, जितना मन चाहे आप उसमें से हाँ खूब लेके चले जाओ। ठीक है। राजा के नौकरों ने राजा के कक्ष में उसको पहुंचा दिया। अब वो देख रहा है चारों तरफ इतने वैरायटी हीरे हैं,
हाँ, अलग अलग रूप में गहने, सोने के गहने हैं और क्या नहीं है वो राजा के कक्ष में। वो देख देख के इतना खुशी में इतना विभोर हो रहा है। हाँ, तो इतना सबको देख के उसको लगा कि मैं तो ये भी ले जाऊंगा, ये भी ले जाऊंगा, ये भी ले जाऊंगा। और फिर क्या देख रहा है, साथ में इतना सुंदर वहाँ पे बेड है और बहुत सुंदर उस पर डल्लब के वो गद्दे लगे हुए हैं और वो थका हुआ तो होता ही है। तो सोचता है चलो आज मैं अच्छे से सो जाता हूँ और मैं जल्दी से उठूँगा और फिर इतना सारा माल मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँगा। ठीक है, जैसे ही वो गद्दे पे जाता है, थका हुआ होता है, तो उसे इतनी गहरी नींद आ जाती है और उसको टाइम दिया जाता है कि सुबह 7 बजे आपको यहाँ से निकल जाना है। तो इतनी गहरी नींद में वो सो जाता है कि उसकी आँख ही नहीं खुलती है। इतने में जो राजा का नौकर है वो आके दरवाज़ा खटखटा देता है। तो वो एकदम वो हड़बड़ा के उठता है और टाइम देखता है कि 7 बज गई। तो एकदम हलचल में वो सोचता है ओह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब उसको बाहर निकलना है उस कक्ष से। तो एक टेबल होती है, उसके हाथ एक टेबल लगती है और टेबल थोड़ा सुंदर होती है। बस वो बाहर निकलना है उसे, तो उसी को खींच के वो बाहर निकाल पाता है। तो क्या देखता है, वो टेबल भी सिर्फ 500 रुपये की ही होती है। तो कहने का भाव है कि राजा ने तो उसे भरपूर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी नींद या आलस्य के कारण उतना ही ले पाया जितना उसने वो कर्म किया था। इसीलिए भगवान भी हमको रोज श्रेष्ठ कर्म की खेती बोना सिखाते हैं। आत्मा तू कर ले अपने लिए कुछ, जितना मैं करूँगी मुझे मिलेगा तो वही ना। दाता ने तो मुझे बांट के नहीं दे रहा है, वो तो मुझे खुला भंडार दे रहा है। हाँ, ले लो जितना लेना चाहो। तो इसलिए कहा आज बाबा ने कि जितना लेना चाहो, जितना भाग्य बनाना चाहो बनाओ, पर कहीं ना कहीं मैं भी किसी कारण से सोई हुई तो नहीं हूँ। ये चेक करो, कोई ना कोई अपनी कमी कमजोरी के अगर मैं वश होंगी तो शायद ये समय भी मेरे हाथों से निकल ना जाए ना। वहाँ तो राजा की बात है, यहाँ भगवान स्वयं दाता बन मुझे दे रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा, क्वेश्चन को तो जानते हो, टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी पास होने वाले होंगे ना, पास होने वाले हो ना, पूछ रहे बाबा। अच्छा, ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या करना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान मिला है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इसलिए इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन वरदान, फल है मिलन वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना ही होता है। अभी तो मौज मना लो। हाँ, फिर सीजन के लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भर अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं।
ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। जो जहाँ है, जिस धरनी पर है, फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हैं। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सभी विशेष है ना। हाँ, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देंगी। ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थानों के कल्याणकारी हो। अच्छा, बाबा ने अमृत वेले श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है, तो अमृत वेले पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। हाँ, ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा आप इस संगम युग पर ही बाप दादा के द्वारा ही बनता है। इतना सुंदर गुलदस्ता, और सारे ही फूल कैसे हैं? गुलाब, रूहानी गुलाब है ना, सभी रूहानी गुलाब। तो जो जहाँ है अपनी खुशबू फैलाते हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है, कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू। तो आप सब चेक करेंगे आप सब में कौन सी खुशबू है। कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो सभी हैं और सदा खिले हुए भी हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं हैं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। सभी ने अमृत वेला किया। हाँ, देखो क्या कहा बाबा ने, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। रूह रिहान भी करते हैं ना सभी, बातचीत। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले का समय का गायन है। तो जो चाहो दाता से मन इच्छित फल प्राप्त करिए। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को
अनुभव से जानते हो ना, अनुभव ही है ना सब अमृत वेले के, तो सभी का पावरफुल है अमृत वेला। अनुभवी ही जाने श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते, बाप दादा भी यही गीत गाते, समझा? वाह वाह। तो इसीलिए सब कौन है? कौन है सभी? सब वाह वाह है। बाबा ने कहा मुरलियाँ तो बहुत सुनी, सुन सुन कर संपन्न बन गए हैं। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यू के अर्थात ओ के रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन कर के बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा शब्द? बाबा ने कहा कौन सा? थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं। हाँ, हर बात में थैंक यू। बाबा को भी थैंक यू बोलते हैं। आप सब क्या बोलते हो? हाँ, शुक्रिया बाबा। क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए होना। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ तो सबकी कौन सी भाषा हो गई? रूहानी भाषा। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है, स्नेह भी अच्छा। हर एक स्थान की कौन सी? हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही। लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। किन में? जो यूके में है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा, जैसे यज्ञ से प्यार है। हाँ, कुछ भी करना है, पहले कुछ भी कमाई घर में आती तो सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं? यज्ञ के लिए। तो सभी निकालते हो, ये प्रण कर लो, जो आप निकालोगे उसी का ही आपको भाग्य मिलना है। बाकी तो कुछ जाना नहीं है हमारे साथ। इसीलिए बाबा ने देखो उनकी विशेषता सुना रहे हैं। बाबा ने कहा पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए ही नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। प्यार से जो देते हैं
कहते हैं भगवान प्यार का भूखा है। कितना अच्छा बाबा ने कहा, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। हाँ, कच्चे चावल, और उसके बदले भगवान ने उसको सोने का महल दे दिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो भावना से देते हैं ना, हाँ, उस भावना का जो भाड़ा है हमें कितना गुना मिलता है। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है, चीज का दाम नहीं, स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई वैसे भी भले कितना भी दे दे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता है। हाँ, कितना भी दे दे पर उसमें स्नेह नहीं, भावना नहीं, बाबा ने कहा उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। जब से बाबा के बने तब से ही यज्ञ से बहुत प्यार है, स्नेही है। तो बाबा ने कहा यही सहज योग भी है। सहयोगी ही क्या बना देता है? सहज योगी। बाबा कहते हैं सहयोग सहज योग है। तो सहयोग का संकल्प पाने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। कुछ भी सहयोगी बन रहे हैं किसी भी चीज़ में, पर किसकी याद आएगी? बाप की। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। इतना विशाल दिल होकर सौदा करते हैं भगवान के साथ। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है ना। फाउंडेशन बड़ी दिल है, हाँ? तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। तो वहाँ का फाउंडेशन कौन था? जानकी दादी। हाँ, अब वे शाखाएं भी तना बन गई। उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकला, सब तना बन गए। फाउंडेशन कौन हुआ? यूके। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हो गई सब माला माल? हाँ, हो गए सब तृप्त। कितना बाबा ने बच्चों को दिया, एक एक चीज़ पर अटेंशन खिंचवाया। अनादि आदि। तो अनादि स्वरूप क्या है हमारा? साइलेंस ना। आदि तो पता है, आवाज़ में आते हैं। और क्या एक्सरसाइज बताई आज बाबा ने? हाँ,
न्यारे और प्यारे और स्वीट साइलेंस स्थिति में जहाँ चाहे मन को लगा सकें। और क्या कहा बाबा ने? हाँ, बिंदी बन बिंदी में टिक जाना। और क्या कहा बाबा ने? कितने तरह की चीज़ें आएंगी, उनको हमको पास करना है। हाँ, देह के संबंध, देह के संस्कार, हाँ, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल। हाँ, बाबा ने कहा चारों तरफ हलचल होगी तो अचल रहना है। आज बीच बीच में बाबा ने जो हमें अभ्यास कराए हैं न्यारे और प्यारी स्थिति का, मैं बिंदु, बाबा बिंदु। हाँ, तो बीच बीच में ये एक्सरसाइज हम करें। कहा ना बाबा ने, नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। हाँ, तो इतने हम नष्टो मोहा बन जाएं। आज बीच बीच में बाबा ने बच्चों को बहुत अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा है अभी भी भोलेनाथ का पाठ चल रहा है, जो कमी है उसको अभी भर लो। बाबा ने कहा पेपर तो कैसे होंगे और समय थोड़ा है, तो इसलिए चलते उठते बैठते सेकंड सेकंड अशरीरी होने का अभ्यास हमारा चलता रहे। आज कहा बाबा ने कोई भी व्यर्थ है, सुनते हुए भी ना सुनो, देखते हुए भी ना देखो, ये सब अभ्यास हमारा चलता रहे। आप सबने बहुत सारी पॉइंट ली, आज नोट भी की होंगी, तो आज पूरे दिन आप इनको पढ़ते भी रहें, सुनते भी रहें। ये चीज़ें हमको मदद करती हैं। बार बार कोई चीज़ हमारे मन में आती है तो अपनी छाप छोड़ती है वो, और जो बार बार हम रिवाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं, तो भगवान के थ्रू एक स्टैम्प लग जाती है, हमें वरदान मिल जाता है। अमृत वेले का महत्व बताया बाबा ने, और फिर सफल करने का भी महत्व बताया बाबा ने। हाँ, और इसीलिए तो वैल्यू किसकी है ना? हाँ, जो स्नेह से दे रहे हैं। बाबा कहते कितना भी दे, स्नेह ना हो, भावना ना हो तो जमा नहीं होता है, तो स्नेह हो। और कहा बाबा ने जो आए कुछ सबसे पहले भगवान के लिए हिस्सा निकालो। सचमुच वो मेरा जमा कराना चाहता है। हाँ, तो कितना भाग्य विधाता मेरा भाग्य बनाता है। तो आज मुरली आप सब ने सुनी, तो आज वरदान सुनेंगे हम। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव, निर्माण चित भव। तो बाबा ने कहा जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक जब कोई झूठ बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। हाँ, कौन सी दो बातें? कोई झूठ बात कहता है या कोई ग्लानि करता है, तो दो बातें क्रोध को जन्म देती। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ। हो सकेगा ये? कोई गाली दे और हम उसको गले लगाएं। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ। हाँ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। कितना अच्छा बाबा ने ना, कोई निंदा करे, गलानी करे, आप उसे गले लगाओ। हाँ, और कोई आपकी खूब
खूब निंदा कर रहा है और आप उसको मित्र मानो ना। देखो भगवान की शिक्षा कितनी सुंदर है, तब आपकी वाह वाह होगी। हाँ ठीक है, तो आज का स्लोगन है मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। तो सभी ने बाबा की मुरली को बहुत ही अच्छे से सुना। तो ये पूरे दिन आज हम अपना अभ्यास करते रहेंगे। बाबा की जो मुरली है, हाँ बीच बीच में हम साइलेंस में जाएं। जैसे आज बाबा ने कहा आवाज़ में आना तो सहज है, पर बीच बीच में हम बिल्कुल तो बैठ जाएं कुछ पल बाबा की याद में। अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित कर लीजिए। और उस आत्मिक भाव में डूब जाइए। डीप साइलेंस का अनुभव करिए। मुझे आत्मा का अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस खुद को बिंदु स्वरूप देखिए। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु। उस शक्ति को अनुभव करिए। मैं न्यारी प्यारी अशरीरी आत्मा हूँ। चारों तरफ हलचल ही हलचल है। हलचल में भी मैं अचल महान आत्मा हूँ। मैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। बस मैं और मेरा बाबा।
इसी स्थिति का सारे दिन अभ्यास करते रहिए। देह से प्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ,